Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. First topic is immunity. What do you mean to immunity? Immunity is the bodily defined as the capacity of the body to recognize a material as a foreign to itself and neutralize, estimate of metabolism then without injury to be organ tissue. That is called to the immunity. Immunity is simply language. The immunobiology is the study of organization and functioning of the immune system. The immune system provides the immunity protection against the disease. There is a most important here are definitions on the protection against disease is the immunity. Here the one fact is Jenner, the father of immunology. Jenner is called to the father of immunology, Edward Jenner. There is a complete name is Edward Jenner is 1749 to 1823. Is considered to be a father of modern immunology, and is demonstrated is that is the inclusions of cowpox is a crust afforded to the protection of a human against to the smallpox. He observed that is a milkmaid who has recovered that a cowpox is never to contracted with the disease smallpox. Another there is the name of vaccines for Latin words vacca. Vacca for the cow is a name with into the belong to the milkmaid, and there is a vaccination individually be a protect from to small virus. There is smallpox virus. Such a protection give them that is called the immunity. To a smallpox is a other genus neither now to the actually causing agent of the disease nor a actually mechanism of protection. That is a Jenner is a father of immunology. He is discovered from the 1749 to 1823. Here is the concept of self and the non-self. There is the most important here. The basis of the above mentioned the protection was the ability of immune systems of man is a milkmaid and the vaccination individual to distracted or between to self. There is a organ tissue and non-self is a component of the outsider. The smallpox virus this is the context, and their individual induced is a psychologically is response immuno response is a substance that are different from to self component. For example, on immune response is a individual induced against the pathogen. Pathogen here is a bacteria, virus, fungi and the parasite. There is a different types of pathogen here is a bacteria, virus, fungi and parasites attacking to the body of host. That is the most important. Let us now to learn about the different way which the body defect itself from to the pathogen and other harmful substance. दोस्तों यहाँ पर जो बात आया है प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी की बात आ रही है प्रतिरक्षा तंत्र की। देखिए ये प्रतिरक्षा तंत्र से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। कहते प्रतिरक्षा के व्यापक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा शरीर बाहरी पदार्थों को पहचानने और अपने उत्कों की क्षति पहुंचाकर या बिना क्षति पहुंचाकर बाहरी पदार्थ को निष्पादित निष्कर्षित और उपचयित कर देते हैं। तो बात तो इतना इंपॉर्टेंट है, अब समझ में आ गया होगा कि इम्यूनिटी का मतलब यही होता है कि कोई बाहरी पदार्थ हम पे अटैक करता है तो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी होती है उसको वो बाहर ही रहने देती है, अंदर प्रवेश करने के लिए वो अपना बैरियर बना लेती है। तो इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। अगर इम्यूनिटी रहता है तो आप कोई भी वायरस के रिगार्डिंग आपका प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाएगा और उसको आपके बॉडी में एंट्री नहीं करने देगा। अगर एंट्री हो भी गया तो उसको जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको नष्ट तहस नहस कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं या इसी को इम्यूनिटी क्षमता भी कह सकते हो, जिसमें निष्प्रभावित कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, उपचयित कर देती है। तो ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम तगड़ा हो, इम्यून सिस्टम में पूरी तरह की जो है पावर हो। अब यहाँ पर बात करें हम जो इम्यूनोबायोलॉजी की बात करते हैं यानी प्रतिरक्षा जैविक की बात करेंगे तो इसमें बात यही आती है कि जो प्रतिरक्षा जैविकों में प्रतिरक्षा तंत्र के संगठन का जो है कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है यानी किस प्रकार वो कार्य करता है, इस विषय में यहाँ पर चर्चा की जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र रोगों के लिए प्रतिरक्षा रोगों से बचाव प्रदान करता है। तो देखिए प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारे अंदर बॉडी जो बीमारी होती है उससे बचाव के लिए ये काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है। अगर हम बात करें जेनर की प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में, देखिए एडवर्ड जेनर जो थे काफ़ी जुझारू साइंटिस्ट थे, उन्होंने हर बात पे यहाँ पर अध्ययन करने की कोशिश किया। तो इसलिए इनको जो है प्रतिरक्षा तंत्र के जो है जनक के रूप में जाना जाता है, यानी फादर ऑफ जो है इम्यूनिटी इन्हीं को माना गया। क्योंकि एडवर्ड जेनर ने कहते हैं 1700 जो है
1949 से लेकर 1823 ईस्वी तक आधुनिक प्रतिरक्षा जैविक के जनक माने जाते हैं। उन्होंने बताया है कि जो है गौ चेचक की पपड़ी यानी क्रस्टेड की टीका लगाने यानी इनक्यूलेशन से मानव में जो है चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षा हो जाता है। तो देखिए ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उन्होंने बताया था। उन्होंने देखा कि अगर ग्वालियंस एक बार गौ चेचक संक्रमण हो जाने के बाद स्वस्थ हो गया है तो उन्हें कभी भी चेचक का संक्रमण दोबारा नहीं होता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई थी कि अगर चेचक किसी को एक बार हो गया है तो दोबारा जो है नहीं होता है। कारण ये होता है कि वो पहले जो उसको भी पहली बार हुआ है तो उसका ह्यूमन सिस्टम जो है उसको रिकग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, और दूसरी बार वही बीमारी उस पर अटैक करता है तो वो उसको होने नहीं देता है, क्योंकि उसकी ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होती है, तभी ये कंडीशन पैदा होता है। कई बार तो देखने को मिला है कि अगर स्मॉल पॉक्स हो या काउ पॉक्स हो तो ये दोबारा भी हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन तब होते हैं जब उनके ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि ह्यूमन सिस्टम जो होती है इन सब बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसी बात को जो है जेनर ने जो है प्रतिरक्षा तंत्र के में पूरी बात को जो है दृष्टिगोचर रखा था। कहते हैं अंततः गाय के लिए प्रयुक्त लैटिन शब्द वैका से वैक्सीनेशंस यानी टीकाकरण शब्द प्रचलित हुआ है। ग्वालियंस का टीका लगाए गए व्यक्ति चेचक के संक्रमण से बचे रहे। इस सुरक्षा में उन्हें चेचक के विरुद्ध असंक्रमण प्रदान की दापी जेनर की न तो इस रोग से वास्तविक कारक के बारे में कोई जानकारी थी और न ही सुरक्षा प्रणाली कोई ज्ञान था। क्योंकि देखिए बेशकली हम जो है एडवर्ड जेनर को जो है इसका फादर मानते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाए तो उस समय इन सब बातों की बहुत ही कम ज्ञान था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो योगदान दिया वो काफ़ी सराहनीय थी और इसी योगदान की वजह से जो है आगे इतने बड़े खोज हो सकी। बात यहाँ पर आता है अपने और पराये की संकल्पना। देखिए अपने और पराये की संकल्पना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपने होते हैं वो, ठीक है, जो आपके लिए अच्छे होते हैं, और जो पराये होते हैं जो आपको बहुत तरह के नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये बात अपने और पराये की यहाँ पर आ जाती है। ऊपर बताई गई सुरक्षा का आधार था ग्वालिन का टीका लगाए गए व्यक्तियों में अपने स्वयं ऊतक और पराये जो बाहरी व्यक्तियों के संगठित यानी चेचक का वायरस के बीच भेद कर पाने की क्षमता। तो कहते हैं अगर टिश्यू अपना टिश्यू था तो अपने टिश्यू तो वो एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन बाहरी के द्वारा लगाया गया जो टिश्यू थे वो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल बात आ गया था। कहते हैं एक व्यक्ति अपने से हटकर जो है पदार्थों के विरुद्ध एक शक्ति क्रियात्मक अनुक्रिया करते हैं। प्रतिरक्षा अनुक्रिया उदाहरण के तौर पर अगर रोगजनक यानी जो है जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी जो कि पोषी पर आक्रमण करते हैं उनके विरुद्ध एक प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है। यानी अगर देखा जाए तो ये रोगजनक जैसे जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, परजीवी हो तो उसके प्रति जो है प्रतिरक्षा जो है अनुक्रिया बहुत काफ़ी अच्छा यहाँ पर संकल्पित रूप में कार्य करता है। आइए अब हम इस पर विभिन्न तरीकों के बारे में भी जानने की इनके द्वारा शरीर में रोजगो एवं अन्य हानिकारक पदार्थों का स्वयं की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है आगे। There is the next topic is the defense mechanism in the body. There is the most important here, defense mechanisms in the body. There are 4 defense mechanisms in our body. First is the immunity, is a defense to the body from an infection. Second is a metabolic defense to be metabolized and is a dactophaxis from foreign chemical. And third is a stoppage of the bleeding is a hemostasis to prevent the blood loss. And fourth is the resistance to stress, mainly through the release of hormones. There is the immunology. The defense is the most important defense mechanism. It's a provide to protection against the various infected agent as a virus, bacteria, fungi, parasites, and also against the development of tumor. There is a defense mechanism of the body is the most important for here mechanisms. And there is the immunological defense serves on 3 main functions here. So there defense against the microorganism and recognize and destructed of the mutant cell surveillances, and here third is the removals of damaged and non-functioning cell to maintain a normal state of homeostasis. There is the most important is the surveillance here and defense to the microorganism. There is the immunological defense serve of the main function here. दोस्तों यहाँ पर अगर बात हम करें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो है प्रतिरक्षा प्रणाली कई मायने में इम्पोर्टेंट रखता है और ये इम्पोर्टेंट है भी। कहते हैं हमारे शरीर में 4 प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पहला तो यही होता है कि शरीर के संक्रमण से बचने के लिए प्रतिरक्षा। दूसरी यही होती है कि बाहरी रसायनों के उपचार के जो है
विषीकरण के लिए उपचाई सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा जो होता है रक्त स्वायत्त थमना यानी हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस हो या रक्त स्तंभ हो, या स्तंभ रोकना जो है रोकना या रुकना, जिससे रक्त की हानि नहीं होती है। अगर देखा जाए तनाव के विरुद्ध जो है प्रतिरोध मुख्यतः हार्मोन के जो है निश्चित होने से ऐसा होता है। अगर इस प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली है तो यह अनेक संक्रमण कारकों के विरुद्ध प्रतिरक्षण प्रदान भी करता है। जैसे कि आपको पता ही है कि विषाणुओं, कवकों, परजीवियों के विरुद्ध और साथ ही अव्वल एक प्रकार के जो है रसौदी ट्यूमर वृद्धि के विरुद्ध भी इसका जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य रखता है। तो ये जो है प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको 4 रूप में यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। बात अगर हम यहाँ पर करें प्रतिरक्षा सुरक्षा प्रणाली की 3 मुख्य कार्य के विषय में, तो ये तो आपको पता है कि पहला कार्य तो इसका यही होता है कि सूक्ष्म जीवों की से प्रतिरक्षण, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका जो है प्रतिरक्षण करते हैं। तो अगर वो नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर को काफ़ी हद तक बीमार करने के लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरी बात तो यही आता है कि उत्परिवर्तित कोशिकाओं की पहचान व विनाश, क्षतिग्रस्त एवं अकृत्रिम कोशिकाओं का निराकरण द्वारा सामान्य स्थिति बनाए रखना और समस्थापन की समवस्था जो है हेमोस्टासिस में किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनो सिस्टम। द इम्यूनो सिस्टम इज हेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाय नाउ यू आर aware that immunity to infections is one of the most important factor facilitated is the survival of the individually. Immunity is mainly provided by a complex network of cells, tissue and soluble factor. The network is a collectivity referred to as the immune system. Cell is a participating in the immune response are they organized into the discrete and the lymphoid tissue and organ. There is the most important here immune system. There is a tissue and the organ involved in the immune system here. The lymphoid organs are divided into 2 groups mainly here. A central lymphoid organ is a primary lymphoid tissue, example thymus and bone marrow. There is show here. Here show the major lymphoid organ and tissue here. There is a primary lymphoid organ and secondary lymphoid organs and tissue here. The thymus, bone marrow, spleen there here is the primary lymphoid organs. On the other side is the bladders, rings, lymphatic node is the toxins, and the lines and the branchious, lymphoid node, bone marrow, lymphoporia, mentous lymphoid nodes, and there is a pairwise patches and the residual lymphoid tissue and the lymphoid nodes here. The major lymphoid organs and tissue here present this diagram. There is a most important diagram shown in this diagram. The second is a peripheral lymphoid organ and secondary lymphoid tissue. Examples as a pair is a patches is a toxins is a lymphatic node and the mucosa is associated to the lymphoid tissue is a MLT, and which is associated with there is a respiratory system, erythrocytes and alimentary canal. They show in this figure. And the next here cell of immune system. The cells of immune system here, the first is the lymphocytes, lymphoid cell. There are lymphocyte, lymphoid cell here. All these are individually derived from to the hematopoietics and the blood cells, the producing stem cell of the bone marrow. There is a bone marrow here, and stem is a cells mean to the undifferentiated cells and which can undergo to the unlimited divisions and can be given rise to one or several different cell types. Apart from producing lymphocytes, bone marrow stem cell also is differentiated to be produce erythrocytes. Erythrocyte is a red blood cells and thrombocyte is a blood platelets, and the granulocytes and the monocyte is a white blood cell. There is the most important here is the lymphocyte part here. The erythrocyte is the red blood cells, thermocyte is the blood platelets, and granulocyte and monocyte is a white blood cells. And the next here, is a merophages. There is a macrophages here. There is second is a macrophages. They are derived from two monocytes. The lymphocytes are the major cell types of responsible for performing the immunofunction. About 10-12 power lymphocytes consist of is a mature lymphoid system in the humans, and the functioning lymphocytes are derived into 2 subclasses. There is a B cells and B lymphocyte. T cells are T lymphocytes.
Morphologically, these cells cannot be differentiated, but of functioning, they are districted cell of human system and differentiated on the basis of the presence or the absence a specific cell surface is a markers. Here is the B cells means B lymphocytes here. The main function of B cells here, initially antibody mediated to immune response and transfer into the plasma cells which is a secret to the antibody. That is the most important, and the next is the origin of B cells. The B cells, what do you mean to origin of B cells here? Here is the origin of B cells. The B cell stand of the viewer is the study is the birds. Showed that is the birds is the fabricus as a Hindu god is lymphoid organs was the site of antibody producing cells. And these cells are therefore to term to the B cells is a B derived from to the versa of the fabricus. B cells mature in their bone marrow and then are carried by their blood to be a peripheral lymphoid organ. In a mammals, B cell is a linkage began to the fetus embryonic liver. This process began to during the 8th weeks of human gestation, means pregnancy. There are factors the liver is a continuously to be the major cyst for the production of the B cells, and until we are into the second is a trimester is a 4 to 5 months of pregnancy. A stem cell there is a populate for the bone marrows, and therefore B cells are continuously producing in the bone marrow throughout life. Here show the bone marrow here diagram, and there is a hemophagocytic stem cell. There is as divided is a thymus is a different part. There are thermocytes, erythrocytes, T lymphocyte, B lymphoimmunocytes. They are present here. And there also is a granulocytes, monocyte, is communities, antibody producing plasma cells, immunocomplex. There is a origin of B and T cells here. There is a origin for the bone marrow. Here is the characteristics of the B cells here important. There is first here B cells display immunoglobulins as an integrated protein of their cell membranes. And this surface immunoglobulins antibody act as a receptor for anti-specific to AIDS. And their B cells are responsible for their production of the antibody. Is activated the B cells is a transfer into plasma cells. You will learn about the antigens and antibody in the next section of lesson. There is the most important here is the characteristics of B cells here. There is shown in this diagram in the flow chart is the processing of antigens here of B cells. There produce plasma is a cells and cell membranes. There is the most important and goes based to there is a specific antibody. There is a B cell differentiation and the anti-production here. Here is the plasma cell is a produce 1,000 of antibody molecules per second before they are die in a day or so. There is a most important fact here. A plasma cell produce 1,000 of antibody molecules per second before they are die in the day or so. The sum of B cell is a progeny do not differentiate into the plasma cell but rather become memory cells, and which are produced to antibodies in the event of antigen is a reappearing against a future. There is the most important here. The next here is a B is a T cell means T lymphocyte. There is a T cell is a T lymphocyte here. In a contrast to B cells is other lymphocytes that leave to the bone marrow in the immature state during to the fetus and the early stage of life, and these are the carried to be a thymus, matured in their thymus, and then to the immigrate to the peripheral lymphoid organ. And this cells is a constituted to second major class of lymphocyte. The lymphocytes are T as they are T derived from the thymus. A producing of T cells is a completely earlier life. But like B cells, there are also undergoes to the mutasis is a peripheral lymphoid organ. The daughter cells began to identical to be original T cell. And there is a most important main function of T cells here. So first of all, here is the main function of T cell is to regulate the immune response. That is the first, and second is a meditate cell meditated immuno is the CMI response, and third is introduced to the B cell to producing antibody, and the
T cells are functionally classified into three categories, that TH, TC and TS. The helper T cells here, TH, is a promote to the response of B cells or resulting in antibody production activity other T cells. And second is the cytotoxins T cell. TC is a kill to virus infected cells and tumor cells. And third here, there is suppressor is the T cells, the TS here. Suppressor T helper T cells and maybe also B cell is a limit regulate activity of the latter. And thus we see that a T cell is a mediate two general types of immunologics is a function, effector and regulator. The statutory T cells are differential on the basis of presence of absence some or specific surface molecules. T cell receptor, but both B cells and T cell work in the cooperations. There is a cooperation to the each other. यदि बात करें हम प्रतिरक्षा तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा ह्यूमन सिस्टम हमारे लिए कितना उपयोगी सिद्ध है और ये हमारे कई तरह के संक्रमण को बचाने के लिए भी सुचारू रूप से कार्य करता है। हम जानते हैं कि संक्रमण के प्रति रोग क्षमता जो है प्रतिरक्षा एवं महत्वपूर्ण कारक है जो एक व्यक्ति को जो है अस्तित्व को जो है सुदृढ़ बनाता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है और ये सारे ह्यूमन सिस्टम की वजह से ही संभव हुआ है। कहते हैं अगर प्रतिरक्षा कोशिकाओं को उत्कों एवं विलयता यानी बिलीय कारकों पर जटिल तंत्र है तो इस तंत्र को जो है सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र कहा जा सकता है। यानी यही प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारे शरीर की कई तरह की बीमारियों से लड़ने में हमें काफ़ी हेल्प करता है। बात करें प्रतिरक्षा के अनुक्रियाओं के संबंधित, कोशिका को अलग जो है लसिकाभ, उत्कों और अंगों में संगठित किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको लसिकाभ और उत्कों और अंगों में जो है इसको संगठित किया जाता है, अलग किया जाता है। अगर बात करें हम पहली पॉइंट को, तो कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधी ऊतक और अंग। देखिए कौन कौन से अंग जो होते हैं प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होते हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत रोचक रहेगा। अगर देखा जाए तो लसिकाभ अंगों के दो समूहों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है हमारा केंद्रीय लसिकाभ अंग तथा प्राथमिक लसिकाभ ऊतक, उदाहरण के लिए थाइमस और अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पहला रहता है। यहाँ पर इसके विषय में आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे ह्यूमन सिस्टम को जो है बूस्ट करने के सारे ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर अस्थि मज्जा जहाँ पर जो है ब्लड बनती है, जो कि ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, पहिया भी दिखा हुआ है, थैलमस भी दिख रहा होगा आपको, प्राथमिक लसिका अंग भी दिखने को मिलेगा और द्वितीय लसिका अंग भी आपको दिखेगा, जिसमें पैच जो है पेयर पैच, अंतरसंयोजिक लसिका वर्ग जो है लेमिनी जो प्रोपिया, अस्थि मज्जा, लसिका पर्व, तो ये सारे चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ अपना स्थान रखता है। तो ये सारे के सारे जो है मुख्य लसिका अंग का ऊतक हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये आपको काफ़ी जो है समझाने के लिए काफ़ी है कि सारे जो है हमारे ह्यूमन सिस्टम के पार्ट हैं जो हमारे शरीर में ह्यूमन सिस्टम को विकास करने में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर बात यहाँ करें प्रदेशी लसिका अंग या द्वितीय लसिका ऊतक के, तो उदाहरण के लिए जो है पहली जो है पेचर पैच, टर्निमस लसिका पर्व, मैक्यूलस युकृत लसिका ऊतक, एमएलटी जो श्वसन तंत्र, मूत्र अंग और आहार नाली से संबंधित है, जैसे कि हम चित्र में भी अभी देखे हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं एक तरह से देखा जाए तो द्वितीयक में आते हैं जो कि हमारे ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएँ कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर अगर बात आता है कि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कौन कौन सी है, तो पहली तो यही आता है लसिकाणु। देखिए लसिकाणु जो होता है लसिकाभ कोशिकाएं भी कहते हैं, हम इसको लसिकाभ कोशिकाएं भी कहते हैं। कहते हैं ये सभी आरंभ में जो है अस्थि मज्जा के रुधिर उत्पन्न करने वाले रक्तोत्पत्ति स्टोम सेल्स अथवा वृत्त कोशिकाओं से वृत्त उत्पन्न होती है, और वृत्त कोशिका का अर्थ जो है अविभेदित कोशिकाओं से है जिनमें असीमित विखंडन हो सकते हैं और जो एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं को जो उत्पन्न कर सकती है। कहते हैं अगर लसिकाणुओं को उत्पन्न करने के अलावा अस्थि मज्जा स्टोम कोशिकाओं में बढ़कर जो है रक्ताणु यानी अर्थोसाइटिस लाल रुधिर कोशिकाएं जो है विषमाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स रक्त पिटकाणु और कणकाणु यानी ग्रेनुलोसाइट्स एक कोशिकाणुओं में मोनोसाइट श्वेत रक्त कोशिका यानी वाइट ब्लड सेल बनाती है। तो ये लसिकाणु जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर तरह के चीज़ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो अर्थोसाइट्स हो या लाल रुधिर कोशिका हो, ब्लड प्लेटलेट्स हो, ग्रेमेटोसाइट्स हो, ठीक है, या वाइट ब्लड सेल्स हो। तो सारे चीज़ें जो होती है इसी में सम्मिलित होती है जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है।
उसके पश्चात आता है वृत्तभक्षकाणु। देखिए वृत्तभक्षकाणु होती है ये एक केंद्रिकाणु यानी मोनोसाइटोस से जो है उत्पन्न होते हैं और प्रतिरक्षा कार्य करने के लिए उत्तरदायी मुख्य कोशिका प्रकार की लसिकाएं जो है लसिका कोशिकाएं हैं। कहते हैं लगभग अगर 10 की पावर 12 देखा जाए तो लसिकाएं कोशिकाओं के प्रवृत्त लसिकाम प्रणाली का निर्माण करती है और कार्य के अनुसार इन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो इसको 2 भागों में जो है बांटने की कोशिश किया गया है। एक तो है बी कोशिकाएँ, ठीक है, जिसमें बी लसिकाणु होते हैं, और एक होता है टी कोशिकाएँ यानी टी लसिकाणु। तो ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं आकृति के आधार पर इन कोशिकाओं को भेद नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रियात्मक रूप से जो है ये भिन्न होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका संकेतिक तथा उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर भी भेद किया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। अगर बात हम आगे करें तो इसमें बी कोशिकाएं जो बी लसिकाणु हैं और बी कोशिका के प्रमुख कार्य तो यही होती है कि प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रक्रिया को आरंभ करना। तो ये तो हर जगह बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान देता है कि प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का काम ही होता है कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया को आरंभ करके जो है हमारे शरीर को जो है रक्षा कर दे बाहरी फोर्गन जो भी मटेरियल बॉडी में एंट्री कर रहा है उसके प्रति। अगर देखा जाए प्रतिपिंड एंटीबॉडी श्वेत करने वाली प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित होना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर योगदान देता है। अगर हम बात करें बी कोशिका की उत्पत्ति के विषय में तो ये भी बहुत काफ़ी रोचक रहेगा। अगर बात करें बी वर्षा इन पुटेलिका के लिए उपयुक्त होती है। पक्षियों पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि पक्षियों में पाई जाने वाले फेलेसियोट प्रपूटी यानी पशु आहार नली की लसिका अंग प्रतिपिंड कोशिकाओं के आरंभिक जो है उत्पादन का स्थान था। इस कोशिकाओं के बी कोशिका कहा जाता है और बी की उत्पत्ति जो है वर्षा ऑफ फैब्रिकस से हुई है, यानी वर्षा ऑफ फैब्रिकस से हुई माना गया है। बी कोशिकाओं में अस्थि मज्जा में प्रवृत्त होती है और तब पश्चात रक्त द्वारा जो है प्रदीर्घित लसिकाएं अंगों तक ले जाए जाते हैं। स्तनधारियों में बी कोशिकाओं के वंश आरंभ में जो है भ्रूणित युकृत में उत्पन्न होते थे और ये प्रक्रिया मानव जो है सर्गभरता को 8वें सप्ताह में आरंभ होती थी। भ्रूण वर्णित युकृत जो होती बी कोशिकाओं के उत्पादन का प्रमुख स्थान माना गया था और स्तंभ 4 से 6 माह तक बना रहा। स्टोम कोशिका फिर अस्थि मज्जा में बस जाती है और इसके बाद उम्र भर बी कोशिका अनवरत रूप से जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती रहती है, यानी जहाँ पर जो है ब्लड का बनते हैं वो अस्थि मज्जा होती है और यहाँ से जो है बी कोशिकाओं की उत्पत्ति संभव हुआ, यानी वर्षा ऑफ फैब्रिका से जो है इसकी उत्पत्ति माना गया। लेकिन इसमें जो है अस्थि मज्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान दिया और ये भ्रूण में विकास का जो है प्रथम चरण माना गया था। जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो कि अस्थि मज्जा से ही इसका जो है उत्पत्ति दिखाया गया है। अस्थि मज्जा ही आपको पहला दिखेगा, उसके बाद रक्त उत्पत्ति स्टोम और वृत्त कोशिकाएं दिखेंगे। उसके बाद जो है ये थाइमस में जो है काफ़ी भागों में विभक्त हो गया है। इसमें जो है थाइमस जो है बिंदु जो है बिंबाणु यानी थैमोसाइटोस में, रक्ताणु ब्रोकोसाइटिस मोनोसाइटिस में, एंटीजन संवेदनशील, टी लसिकाणु, बी लसिकाणु, ठीक है। तो सारे चीज़ें में विभक्त कर दिया है, यानी बी कोशिका और टी कोशिका की उत्पत्ति का जो है ये चरण सीमा बताई गई है जहाँ से इसकी उत्पत्ति जो हुई है। तो देखा जाए तो बोन मैरो ही जो है सबसे प्रथम स्थान माना जा सकता है। यहाँ पर कोशिकाणुओं के अभिलक्षण की बात हम करें तो कहते हैं बी कोशिकाणु में जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की अपनी कोशिका झिल्ली के जो है विभिन्न जो है प्रोटीनों के रूप में दर्शाई जाती है और कहते हैं ये सतत जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स यानी जो है प्रतिपिंड एंटीबॉडी इसके विशिष्ट प्रतिजन एंटीजन के लिए जो है ग्राही गाहक का कार्य काम भी करती है। बी कोशिकाओं जो है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है और सक्रिय बी कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। आप आगामी खंडों में जो है प्रतिजनन यानी एंटीजनन और जो है एंटीपिंड यानी एंटीबॉडी के विषय में भी जानोगे कि प्रतिपिंड जो है एंटीबॉडी उसका क्या कार्य है। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो संशोधित प्रतिजन जो है एंटीजन आपको दिख रहे होंगे, बी कोशिकाओं के साथ अटैच है और स्मृति कोशिका भी दिखेगा और प्लाज्मा कोशिका भी दिखेगा। तो ये जो डायग्राम है काफ़ी कुछ बताने के लिए पर्याप्त है कि बी कोशिका विभेदित और प्रतिपिंड निर्माण किस प्रकार होता है। तो विशिष्ट प्रतिपिंड निर्माण कुछ इसी प्रकार से होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहता है।
अगर यहाँ एक फैक्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा कोशिका एक या अधिक दिनों में मर जाने से पूर्व हजारों की संख्या में प्रतिपिंड अणु प्रति सेकंड उत्पन्न करती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गया कि प्लाज्मा कोशिका एक या अधिक दिनों में मर जाने से पूर्व, यानी जो है हमारा कोशिका जो है प्लाज्मा कोशिका जो होती है एक या अधिक दिनों में ही मर जाती है, ठीक है। लेकिन मरने से पहले वो जो है पूर्व हजारों की संख्या में जो है ये प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी अणु बना देते हैं, यानी पर सेकंड के हिसाब से। कहते हैं बी कोशिकाओं की कुछ जो है तृतीय प्लाज्मा कोशिकाओं में विभेदित नहीं होती है, वरना स्मृति यानी मेमोरी कोशिका बन जाती है, जो प्रतिजनन के भविष्य में पुण्य प्रकट होने की स्थिति में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी बनती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, क्योंकि देखिए कोई भी प्लाज्मा कोशिका मरने से पहले हजारों के में जो है यहाँ पर प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी तैयार कर देती है हमारे शरीर के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। अगर हम बात करें टी सेल के विषय में, तो यहाँ पर टी सेल जो होती है टी कोशिकाएं यानी टी लक्षणाणु भी कहते हैं इसको। ये जो होता है बी कोशिकाओं के विपरीत दूसरी लक्षणाणु भ्रूण यानी अवस्था का जीवन के आरंभिक अवस्था में अस्थि मज्जा छोड़ देती है, यानी आखिरी अवस्था में जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जो है इसको छोड़ती है। ये थाइमस में ले जाई जाती है और इस अंग में प्रवृत्त होती है, तब उपरांत जो है प्रथित लक्षिकाम अंगों की ओर गमन करती है और ये कोशिकाएं द्वितीय लक्षणाणु कोशिका वर्ग का निर्माण भी करती है, जिन्हें टी लक्षणाणु या टी कोशिका भी हम कहते हैं। टी की जो है उत्पत्ति थाइमस यानी थाइमस से हुई है, लेकिन जो है बी कोशिका की भांति इसकी भी प्रथित लक्षिकाव अंगों में जो है सूत्री विभाजन होती है, यानी सूत्री विभाजन के द्वारा ही यह आगे विभक्त होता है। अंततः कोशिका के मूल्य जो है टी कोशिका के समरूप ही होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है टी कोशिकाओं के लिए, और जो बच्चों के विषय में टी कोशिकाएँ हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर बात करें हम टी कोशिकाओं के कार्य के विषय में तो देखते हैं क्या इसका कार्य है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है, अगर हम टी कोशिकाओं के मुख्य कार्य के विषय में बात करें तो प्रतिरक्षा जो है प्रतिक्रिया का नियमन करती है, यानी प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया का नियमन करती है, और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया की जो है मध्यस्थता भी यही करती है। प्रतिरक्षा बनाने के लिए बी कोशिकाओं के जो है प्रेरित भी करना इसी का कार्य होता है, और टी कोशिकाओं के उनकी क्रियाशीलता के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित करना इसी का कार्य होता है। तो ये कई मानने में इंपॉर्टेंट रहता है। अगर देखा जाए सहायक टी कोशिका सबसे पहले निर्माण करती है, सहायक टी कोशिका जिसको हम टीएच के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है बी कोशिकाओं के अनुक्रिया को बढ़ाते हैं, जिसमें प्रतिपिंड का निर्माण होती है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और अन्य टी कोशिकाओं से कोक्रिया करती है ये। उसके पश्चात दूसरी बात जो होती है इसमें जो है कोशिका विषी, यानी कोशिका विषी जो होती है साइटो कोशिका यानी टॉक्सी मतलब अविषित टी कोशिका यानी टीसी बनाती है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर टॉक्सिक की बात की गई है, विषय की विष की बात की गई है। तो ये विभिन्न संक्रमित कोशिकाओं के जो अब्दुल कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, तो इसीलिए इसमें जो है टॉक्सिक की बात आ गई है। अगर हम सदामक टी कोशिका यानी टीएस की बात करें तो ये जो है सहायक टी कोशिका का दमन करती है और संबद्ध बी कोशिकाओं को क्रियाशीलता को निमित्त भी करती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि टी कोशिकाओं को 2 सामान्य प्रकार की प्रतिरक्षा कार्य करती है। इसमें देखा जाए तो प्रभावक यानी प्रभावकारी और नियामक यानी नियमनकारी 2 तरह के इसमें दिखाया गया है। सकारात्मक रूप से टी कोशिकाओं के कुछ विशिष्ट सतहीय अणुओं यानी टी कोशिका गांहिकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। बी कोशिकाओं एवं टी कोशिकाओं एक दूसरे से के लिए काफ़ी सहयोगी सिद्ध भी होती है। So our next topic is antigen and antibody. There is the most important here, antigen and antibody. When we discuss about the self and non-self, is we get a body idea of antigen. Let us learn about more about it and the define and the property of an antigen here. An antigen is any of foreign molecules that can be triggered to the specific immune response. There is the most important. An antigen is any foreign molecules that can trigger a specific immune response. Most antigens are either protein or very large is a polysaccharides. The polysaccharides are very large, and another term is the immunogens is also used to antigen. However, there is a slightly difference between the 2 immunogens described to the molecule that provoke an immune response, while the antigen describe are molecules which react with the antibody produced. And here show their paratops and the epitopes here. They are part of
Antibody molecule which make a contact with their antigen is termed to the paratops. The part of antigen molecule that make a contact with the paratop is called epitopes, and there may be a series of the epitopes on the antigen such as epitopes cluster is called antigenic determinant. There is a antigenic determinant, and requirement of become on antigen here. A substance should be foreign to the host. Substance should be foreign to host, and molecular weight of the molecules should be of 10,000 Dalton to or more. It should be post or chemical complexity. That is the most important. There are next here antibody. The antibody is defined and property here. Antibody is a protein molecules produced in an animal in a response to an antigen. An antibody belongs to be a category of proteins called immunoglobulin. There is the proteins called to the immunoglobulin. Each antibody molecule is a composed of 4 interlinked is a polypeptide chain. There is a 4 interlinking polypeptide chain. The 2 long chain are called heavier chain. Their 2 long chain is called to the heavier chain, and the 2 short chain is called to the light chain. An antibody has a stance called to Fc protection, which is the compress the lower half of the 2 heavy chain and 2 proglong. The amino acid sequence that is a blind antigen. The amino acid sequence of Fc is a proton to the identically constant for all the antibody of same classes. In a contrast, amino acid sequence for an antigen binding of site of vary from antibody to antibodies in the given here. Here show the antibody structure. Their antibody structure is the most important here. Their light chain and the heavier chain. A specific antigen binding site, 1 prolong and F stem. There is a antibody structure. There is antibody structure is the most important for the exam view. So here is the types of immunoglobulins. There are 5 major classes of antibodies or immunoglobulins. Here the structured by their amino acid sequence in the heavier chain. These classes are designed by the Ig, Igd, Iga, Ige, Igg and the Igm. The Ig is here is a immunoglobulin. There Ig is here is a immunoglobulin, and they also differ to the molecular weight of the functions. There the Igg is found to the highest concentration, almost 75% of total immunoglobulins in a humans. There is the most important for the Igg. And next here, antibody are produced by the plasma cell, which are differentiated B cells, and each B cells are type producing to the antibody, which react with the particular polypeptides of antigen. And the next here, secretory to the antibody travel all over the body through the blood and reach the antigen and kind that stimulate their immune response, combined with the antigens and then direct or attack by pathocytic cells, and which the eat up to the foreign material is eliminate to the antigen to the cell bearing them. So here show the important diagram. Antigen antibody binding. There is a most important diagram show here. The antigenic determinant here, antigen binding site, antibody there here. There is antigen antibody binding there has most important of attached to each other. बात यहाँ पर आ गया है प्रतिजन और प्रतिपिंड यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के विषय में। देखिए एंटीजन एंटीबॉडी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इसके विषय में जानना अत्यंत रोचक भी रहेगा। हमने अपने और पढ़ाई के विषय में तो पढ़ा ही है अभी कुछ समय पहले ही कि विवेचन करते समय हमने प्रतिजनन और विशिष्ट बोध हुआ है। हमने इस विषय में विस्तार पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रतिजन है या प्रतिपिंड है एंटीबॉडी एंटीजन है वो किस प्रकार जो है हमारे लिए सुलभ कार्य करता है। तो सबसे पहली बात तो आता है प्रतिजनन की परिभाषा और गुण के बारे में। देखिए एक प्रतिजन कोई भी बाहरी पदार्थ जो एक विशेष रोग प्रतिकारक अनुक्रिया को प्रेरित कर सकता है। तो यह इसमें कहा गया है, अगर साफ शब्दों में आप समझना चाहोगे तो यही बात है कि एक विशेष रोग जो है प्रतिकारक अनुक्रिया को प्रेरित कर सकता है, यानी कोई बीमारी को जो है प्रेरित करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये प्रतिजनन कहलाता है। देखिए प्रतिजनन के बारे में अगर और बातें जानना चाहते हो तो इसमें यही बात आती है
कि अधिकतर प्रतिजन या प्रोटीन या तो बहुत ही बड़े पेलोसेकेराइड्स प्रतिजन के लिए एक दूसरे शब्द का जो है प्रतिरक्षा जनन भी में लाया जा सकता है, यानी इसको प्रतिरक्षा जनन भी में प्रयोग लाया जा सकता है, तभी इस दोनों में थोड़ा सा अंतर बेशकली है। अगर बात करें प्रतिरक्षण, एक अणु एक घोतक है जो एक प्रतिरक्षात्मक अनुक्रिया को प्रेरित करता है, जबकि प्रतिजनन एक अणु का घोतक है जो उत्पन्न हुए एंटीबॉडी से जो है प्रक्रिया करता है। तो ये जो प्रतिजनन और प्रतिपिंड है काफ़ी मानने में यहाँ इम्पोर्टेंट है, जो कि अधिकतर प्रतिजनन या तो प्रोटीन है या पॉलीपेसाकराइड है। अगर हम बात करें पैराटॉप्स या एपिटॉप्स के विषय में, देखिए पैराटॉप एपिटॉप्स इन्हीं के विषय में बताता है। किसी भी एंटीबॉडी का वह स्थान जिसे कोई प्रतिजनन संलग्न होती है, यानी पैराटॉप कहलाता है, यानी किसी भी एंटीबॉडी का वह स्थान जिसे कोई प्रतिजनन संलग्न करता है, यानी जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं उसको हम पैराटॉप्स कहते हैं। प्रतिजन अणु वह भाग है जो पैराटॉप्स के जो है संपर्क बनाता है और एपिटॉप कहलाता है। देखिए संपर्क बनाने से जो है ये एपिटॉप में कन्वर्ट हो जाता है। और एक जो है प्रतिजनन में जो है एपिटॉप्स को एक श्रेणी हो सकती है। इस प्रकार की जो है एपिटॉप समूह को प्रतिजैनिक निर्धारक भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं एक प्रतिजन बनने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, तो कहते हैं जो है पदार्थ पोषी का जो है अपना नहीं बल्कि पराया होना चाहिए। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रतिजन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि पदार्थ पोषी जो होती है अपना नहीं बल्कि पराया होना चाहिए। अणु का जो है अणु भार कम से कम 10,000 डाल्टन या अधिक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है रासायनिक सफलता का गुण भी होना बहुत ही मायने रखता है। तो ये सारे गुण का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके जो है ये प्रतिजन बनने की आवश्यकताएँ को फॉलो कर सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है एंटीबॉडी के यानी प्रतिपिंड की, यानी एंटीबॉडी की अगर बात करते हो तो ये परिभाषा और गुण क्या है इसके। कहते हैं एक जो है प्रतिजनन की अनुक्रिया को फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रोटीन अणु जो है प्रतिपिंड और एंटीबॉडी, ठीक है, कहलाता है। या तो इसको हम प्रतिपिंड के नाम से जाना जाता है हिंदी में, अगर इसको कहे तो हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी तो आपको पता ही है कि एंटीबॉडी का मतलब ही होता है कि कोई भी बीमारी के खिलाफ वो हमारे सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन के वर्ग की जो है जो देखा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहलाता है। प्रत्येक एंटीबॉडी अणु 4 पेलोपेप्टाइड श्रृंखला से बना होता है जो आपस में जुड़ी रहती है। 2 लंबी श्रृंखलाओं को भारी श्रृंखलाएं और छोटी श्रृंखलाओं को हल्की श्रृंखलाएं भी कहते हैं। यानी एक भारी श्रृंखला होती है और एक हल्की श्रृंखला होती है, जो हम डायग्राम में भी देखेंगे। एक एंटीबॉडी में एक वृत्त होता है जिसे हम FC भी कहते हैं। यह भारी श्रृंखलाओं को निम्न अग्रभाग 2 भुजाओं यानी प्रतिजनन के जो है वृद्धि करने वाले एमिनो अम्ल अनुक्रमों को मिलाकर बनता है। एक ही वर्ग के सभी एंटीबॉडी के लिए जो है FC भाग को जो है एमिनो अम्ल अनुक्रम समरूप नियमित होती है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो प्रतिजनन बांधे भाग के लिए जो है अमीनो अम्ल अनुक्रमण एंटीबॉडी के साथ परिवर्तनशील होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखती है। यहाँ पर डायग्राम जो है प्रतिपिंड का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें भारी श्रृंखला भी देखने को आपको मिलेगा और हल्की श्रृंखला भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको एग्जाम के व्यू से भी आप इसको तैयार कर सकते हो और ये बहुत साधारण है, जिसको आपको जानना इतना बड़ा लफड़ा नहीं रहेगा, बहुत ईजी है। कहते हैं एक भुजाएँ आपको भी दिख रहा होगा, विशिष्टो एस्टिटजन जो है बाध्य स्थल भी दिखेंगे और F स्तंभ और स्टेम भी दिखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके लिए रह जाता है। इसमें आगे जो हमारा देखा जाए तो एक हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के प्रकार के विषय में है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी भी है। कहते हैं एंटीबॉडी जो है या एंटीबॉडी कह लो, चाहे इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स के 5 वर्ग में बांटा गया है, जो भारी श्रृंखला में अमीनो अम्ल को अनुक्रमण के आधार पर जो है विभेदित किए जाते हैं। अगर ये वर्ग देखा जाए तो IG, IgA, IgE, IgG एवं जो है IgM के रूप में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ IG जो यूज़ किया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रूप में किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आणविक भार या प्रकार्य में ही भिन्न होते हैं। अगर बात करें हम IgG की तो सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाती है, यानी IgG जो है सर्वाधिक सांद्रता में पाया जाता है
और कहते हैं मानव में कुल जो है इम्यूनोग्लोबुलिन की लगभग जो है 75% एंटीबॉडी का निर्माण जो है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा ही किया जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि कहते हैं 75% से अधिक बातें जो है एंटीबॉडी का निर्माण जो है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा ही किया जाता है, जो विभेदित बी कोशिकाएँ होती है। कहते हैं प्रत्येक बी कोशिका एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं जो प्रतिजनन के एक विशेष जो एपिटोप्स में से प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर स्वतः एंटीबॉडी रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जो है परिभ्रमण करती है और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के प्रेरित करने वाले प्रतिजनन के पास पहुँचाती है। कहते हैं उनके साथ संयुक्त होकर जो है आक्रमण योजना बनाती है और जो है भक्षण काणु कोशिकाओं द्वारा जो विजातीय पदार्थों का भक्षण करती है, ये प्रतिजनन या उन्हें धारण करने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है आ जाती है, ठीक है, इसके प्रति, क्योंकि ये आक्रमण योजना बनाती है और जो है प्रतिजनन या उन्हें धारण करने वाले कोशिकाओं को नष्ट भी कर देती है। यहाँ पर डायग्राम भी आ गया कि प्रतिजनन के प्रतिपिंड के बंधन। देखिए यहाँ पर जो है दो चीज़ों को आपस में बॉन्डिंग करके बनाने की कोशिश किया गया है, जो सुचारू रूप से होता भी है। प्रतिजनन देखिए, और ये एंटीबॉडी प्रतिपिंड भी यहाँ पर दिखेगा आपको, जहाँ एंटी जननी निर्धारक और एंटी जनन जो बाध्य स्थल भी आपको दिखेगा। तो इस प्रकार जो है प्रतिपिंड जो है प्रतिजनन प्रतिपिंड बंधन आपस में करते हैं और आपस में करके ही जो है आगे बढ़ते हैं। There is the next topic is the types of immunoresponse. Here is the most important topic here, types of immunoresponse here. There is a bodily immunoresponse can be classified into two categories, is a non-specific immunoresponse and a specific immunoresponse. There is the most important the types of immunoresponse. There are two categories, non-specific immunoresponse and a specific immunoresponse. The first of all is here is a non-specific immunoresponse. Are there those which non-selective protect against the foreign substance or cell without having to recognize their a specific agent is a phagocytosis influence and particular matter by the macrophages and the extracellular killing by protein known as the complement. There are two non-specific types of immunoresponse. And second here, specific immunoresponse, there are adoptive immunoresponse. There is called to the adoptive immunoresponse. Depend upon to the is the immunological recognitions of their substance or cell to be attacked. A specific immunoresponse are given by the two types here. The first here, the cell-mediated immunoresponse. There is a first here, a cell-mediated immunoresponse. The mediated by the cytotoxics is a T cells and natural kill cells. This constitutes to the major defense against the intracellular virus and cancer cell. And the B here is the antibody-mediated and humoral immunoresponse. This response are mediated by the antibodies secreted by the plasma cells which arise from to the activity B cells. They are constantly major form of protection against the bacteria and virus. The above two different each other in their table. The both cell immediately and antibody immediate immunoresponse are facilitated by the helper T cells and inhibited by their suppressor T cells. Here show the diagram is a bone marrow stem cell and thymus processing and bursa is a processing here and T lymphocyte antigen cooperation bond to the B lymphocyte antigen. And the next here there is a lymphoblast and cell mediated immunoresponse and plasma cells here a humoral immunoresponse antibody formation. There is a most important diagram of cell mediated and humoral immunoresponse. Here they show the table difference between the cell-mediated and the humoral antibody-mediated immunoresponse. There is the most important cell-mediated immunoresponse here and the humoral immunoresponse second. There is a killing of the intracellular organism. There is an antibody specific of combined with the antigen with the stimulate their production. And second here, destruction of tumor cell. There the combination of antibody with the antigen may be result in the clumpings of molecules or particles. Their toxicities may be or neutralize their uptake and digestion by is the phagocytes may be fascinated. There is the most important here and third here. The third here is the
Rejections of graft tissue. There is a combination of antigen with the antibody maybe also is a causalizing of cellular antigen present on the red blood cells and bacteria. Decline types of hypertoxicity reaction after contact with the containing antigen here. यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकार के विषय में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है कि व्यापक रूप से प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो है अविशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया और दूसरा जो है विशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है। अगर बात करें अवशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया के तो वे जो बिना चयन के जो है पराये पदार्थों को कोशिकाओं को बिना पहचाने ही उसके विरुद्ध प्रतिरक्षण करता है। वित्त भक्षक यानी कोशिकाओं द्वारा भक्षकाणु क्रिया या कोशिकांशन यानी कोशिकाओं पदार्थों का निगल जाना प्रोटीनों द्वारा जो है कोशिका बाहरी हनन को जो है कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अवशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया के जो है दो प्रकार की यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। उसके पश्चात अगर हम बात करें दूसरी की तो दूसरा में तो यही बात बताई गई है कि विशिष्ट प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी अनुकूली प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं यानी आक्रमण किए जाने वाले पदार्थ या कोशिकाओं को जो है प्रतिरक्षात्मक पहचान पर निर्भर करती है। विशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला जो आ जाता है आपके कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये जो होती है कोशिका विषी यानी विष के टॉक्सिक के रूप में होती है और टी कोशिकाओं का जो है प्राकृतिक हननता कोशिकाओं के मध्यस्थता में होने वाली प्रतिक्रियाओं के रूप में ये दिखती है। अगर बात करें यहाँ पर प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी की तो एंटीबॉडी जो है माध्यमता अर्थात ह्यूमरल्स प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं करती है। ये अनुक्रियाएं जो है प्लाज्मा कोशिका द्वारा स्वयं एंटीबॉडी द्वारा माध्यस्थ की गई होती है और ये विद्यमान सक्रिय बी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ये कोशिकाओं के बाहर के तरल जीवाणुओं व विषाणुओं के विरुद्ध मुख्यतः प्रतिरक्षण भी करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है। उपरोक्त दोनों प्रकार के भिन्न हैं लेकिन इनमें दिखाया गया है कोशिका मध्यस्थता जो एंटीबॉडी मध्यस्थता प्रतिरक्षा अनुक्रिया सहायक टी कोशिका द्वारा सरल कुचक बनाती है यानी टी कोशिकाओं द्वारा जो है सरल सुकच बनाती है और ये जो है टी निरोधक यानी टी कोशिकाओं द्वारा रोकी भी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि डायग्राम में भी आप देख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है कि जो कि अस्थि मज्जा स्तंभ यानी कोशिकाओं जो है उत्पन्न कर रहा है। वर्षा संधारित यहाँ पर उत्पन्न किया गया है और बी जो है लसिका एंटीजन दिखाया गया है और थैलेमस संशोधित और टी लसिकाणु और जो है एंटीजन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एंटीजन होगा, इसके बाद लसिका जनक भी दिखेगा और प्लाज्मा जो है कोशिकाएँ भी आपको यहाँ नज़र आएगा। तो ये कोशिका मध्य और ह्यूमरल्स प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं को दर्शाने वाला ये चित्र डायग्राम दिखाया गया है जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है वो आया है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षी और ह्यूमरस यानी एंटीबॉडी मध्यस्थता प्रतिरक्षा अनुक्रिया में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर कोशिका मध्यमिता प्रतिरक्षी अनुक्रिया है और दूसरा है एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अनुक्रिया। तो पहली बात तो इसमें यही आती है कि अंतरा कोशिका जीवों का हनन और दूसरी बात आता है एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अनुक्रिया यानी एंटीबॉडी विशेष रूप से उन जो है प्रतिजननों से जुड़ी होती है जिनकी उत्पत्ति को प्रेरित करता है। दूसरा है अब्दुल कोशिकाओं का हनन यानी एंटीबॉडी और प्रतिजनन के जो है संयोजन से अणुओं या कणों के ढेर लग सकती है जिनकी विषमता उदासीन हो जाती है। और बात करें यहाँ भक्षाणुओं द्वारा उनकी अंतर्ग्रहण का पाचन जो है सुकर्म हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर था। अगर बात करें हम तीसरी की तो रोपित उत्कों का स्वर्गीकरण। देखिए इसमें प्रतिजनन और प्रतिपिंड को संयोजन से कोशिकाओं का जो है प्रतिजननों का जो लाल रक्त कोशिकाओं या जीवाणुओं में विद्यमान रहते हैं लयन भी हो सकते हैं। अब उसके बाद देखा जाए चौथा पॉइंट, इसमें कुछ प्रतिजननों के संपर्क के पश्चात जो विलंबित प्रकार के अति संवेदनशीलता प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। Naturals is a innate, is a genetical from a birth and acquired development during to lifetime. There is the most important immunity here. First is the natural and innate immunity. A healthy individual is generally immune to the potential of harmful microorganisms by a number of very effective mechanisms. These mechanisms are termed to innate or natural immunity. The innate defense consists of three main components. There are physical barrier is a prevent entry of germs. And second is phagocytic cells are dealings with the germs with their enter.
and the soluble component is a component. There is the most important. The first of all is a physical barrier. The physical barrier here, it is the first line of defense. It is a mean to the preventing to the entry of pathogen into the body. And the skin, the outer tough layer of skin is the formed to the content of, and almost the impermeable of germ. The same mucous is a gland is the skin is generated on the acidic environmental by the producing lactic acid which kill many pathogen. And the epithelial lining of the various organs, there are respiratory tracts and alimentary tracts is the gut, and there is urinary genital tracts have exerted to the epithelium cells layer covered by a protective mucous lining. In the respiratory tracts, the cilia is covered with to the external surface of epithelium cell, continues to the beat of upward and to about there are nasopharynx, and there help to be expel particle of pathogens. Epithelial cells are constantly renewed and there is a removal expel pathogens along on their surface. There is a body secretion. The body secretions such as the sweats and secretions from the eyes also ward a pathogens, and other body fluid contain molecules which are the bactericidals that is capable of kill of bacteria. Example of speromines in a semi-fluid is a hydrochloric acid in a gastric juice. There is the most important for the hair body secretion is the respiratory system, alimentary canal system, and skin. If the germ is somehow enter the body to the avoiding the physical barrier of body, there is the other two main defense of mechanism come into the play is a pathocytosis, and there is a bactericidal effect of the soluble chemical is a factor affecting to the known as the complement system which are described below. There is a pathocytic cells here. A phagocytic cells is when to the macroorganisms are enter to particles such as the colloidal carbon enter to tissue fluid or blood stem, and they are very rapidly is invaded and destroyed by the pathocytic cells. Such cells may be either be circulating in a body fluid or may be defined in some tissue. This phenomenon is called to the phagocytis. Literasis mean to the eating by their cell. The information there is a destruction digestion of microorganism assigned to be two major types of cell, namely to the macrophages is a content WBC and is a macrophages. There are macrophages, liver and spleen. There is the most important here. Here is an important feature of the is a phagocytic cell. There is a rapidly is referred to a foreign molecules as a foreign agent is oncoming to the contact or which they come in a contact with. They are contain a digestive enzyme to the breakdown imported to the materials. They are important link between to innate and acquired immunity described to below. There is a third is a complement system here. The complementary system is the group of protein known as the complementary provide to another innate immunity mechanism for a killing microbes without a perverse is a phagocytosis. Complement system is a stimuli is a complex system consists of at least 20 protein. There is the most important of complementary system is a complement system stimuli. A complex system consists at least 20 protein. Some of the complementary component is a designing by their letter C is a flowing by a number. The most pivotal and most abundant component is a C3. The complement and maybe also act also options is the C3-6 as options is their types of antibody was binding to the antigen on the virus. The virus or bacterium as a facility there is a sequent ingestion by their pathocytic cells. So the antibody can also causing to direct destruction of microbe by making their membranes weakest. तो यहाँ पर प्रतिरक्षा के प्रकार के विषय में है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं प्रतिरक्षा के प्रकार। देखिए प्रतिरक्षा के दो प्रकार के होते हैं, तो आपको भी पता है कि एक तो होता है प्राकृतिक जो सहज रूप से जो है बच्चों को बर्थ के समय प्राप्त होती है, और एक जो होता है उपसर्जित यानी जो हम जीवन काल में कभी भी जो है बच्चों को जो है इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए टीकाकरण करवाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहते हैं पहला जो है जो जन्मजात होती है जो अनुवांशिक जन्म से ही निर्धारित होती है वो प्राकृतिक कहलाता है, और प्राकृतिक कई मानने में बच्चों के लिए वरदान सिद्ध भी हो सकता है और वरदान भी रहता है।
तो अगर हम देखा जाए प्राकृतिक सहज प्रतिरक्षा जो है रोध क्षमता कैसे करती है, देखिए एक स्वास्थ्य व्यक्ति स्वयं को हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से कई प्रभावकारी क्रियाविधि द्वारा बचाता है। इस क्रियाविधि को जो है सहज प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से आपको प्रतिरक्षा तंत्र जो है विकसित हो चुका है। सहज रक्षा के 3 मुख्य घटक होते हैं। एक तो होता है आपको बाहरी अवरोध यानी रोगाणुओं के प्रवेश को रोकने वाली, एक होता है जो है भक्षकाणिका कोशिका यानी प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के साथ उचित व्यवहार किया जाए, और एक होता है विलय यानी विलयशील घटक यानी जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है, किसमें, जो जन्मजात हमारा ह्यूमन सिस्टम होता है। सबसे पहले अगर हमारे समक्ष आता है तो शारीरिक अवरोध। देखिए शरीर के प्रति अवरोध क्या होता है, ये प्रथम रक्षा पांति है। इसका आशय ये है कि रोगाणु को शरीरों में प्रवेश करने से रोकने वाली रक्षा पांति है। देखिए इसमें सबसे पहले आ जाता है श्वसन तंत्र, दूसरा आता है आहार नाल, तीसरा होता है त्वचा। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्षमता में, प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में। इसमें त्वचा की बात किया जाए तो त्वचा की बाहरी सतह परत जो होती है कैराटिन्स पदार्थ की बनी होती है, यानी ये कैराटिन पदार्थ की बनी होती है और रोगाणुओं के लिए लगभग उद्युक्त होती है। त्वचा की जो सीबम ग्रंथि यानी तेलिया ग्रंथि जो होती है लैक्टस अम्ल उत्पन्न करके अम्लीय वातावरण का निर्माण करती है, जो कई रोगाणुओं को नष्ट कर देने के लिए काफ़ी सक्षम होती है। उसके पश्चात विभिन्न अंगों को जो है एपिथेलियम परत कहते हैं, यानी विभिन्न अंगों को जो है एपिथेलियम परत यानी श्वसन पक्ष, आहार पथ जो है मूत्र जनन पथ में बाहरी एपिथेलियम परत होती है, जो एक जो है रश्मि श्लेष्मा परत से ढकी रहती है। श्वसन क्षेत्र की जो है एपिथेलियम परत को ढकने वाली जो है पक्षाभ लगातार ऊपर की तरफ नासाग्राहसनी की ओर गति करते रहते हैं, और इस प्रकार जो है कणों को रोगाणुओं को बाहर निकलते रहते हैं। एपिथेलियम कोशिकाओं का जो है सतत रूप से जो है नवीकरण होता रहता है और उनका निष्कर्षण उनकी सतह पर फंसे जो रोगाणुओं को जो है भी निष्क्रिय कर देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शारीरिक स्वाद। देखिए शारीरिक स्वाद क्या होती है, कहते शारीरिक के स्वाद जैसे पसीना व नेत्र स्वाद जो है रोगाणुओं को दूर भगाए रखते हैं। अंततः देह तरल पदार्थों में भी ऐसे अणु मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया या नाशी यानी जीवाणुनाशी होते हैं, अर्थात वे बैक्टीरिया को मारने में समर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए शुष्क तरल में जो है स्पोमाइनर जठर रस में जो है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि पाया जाता है, जो कि शरीर स्वाद को रोकने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना योगदान देता है। बात करते हैं अगर यदि हम जीवाणुओं के शरीर के जो है शारीरिक बाध्य तंत्र को बचाकर शरीर में प्रवेश भी चले जाते हैं, और दूसरी ओर मुख्य जो है प्रतिरक्षा तंत्र अपना अपना जो है काम संभाल लेते हैं। भक्षाणु क्रिया और जो है विलयशील रासायनिक कारकों को जो है जीवन नाशक प्रभाव जिसमें सम्मिलित रूप से पूरक तंत्र यानी कॉम्प्लीमेंट तंत्र भी कहलाता है, जिसकी वर्णन नीचे दिया गया है। अब बात करें हम दूसरी पॉइंट की, तो भक्षकाणु कोशिका आती है। देखिए भक्षाणु कोशिका क्या होती है, जब सूक्ष्मजीवी और निष्क्रिय कण जैसे कोलाइडल्स कार्बन उत्तक द्रव्य या रक्त प्रभाव में पहुंचाते हैं, तो ये जो है भक्षकाणु कोशिका द्वारा जो है शीघ्रतापूर्वक निगल कर नष्ट कर दिए जाते हैं। ऐसी कोशिका या तो शरीर तरल पदार्थों में संचलित होती है या कुछ उत्कों में जो है अवरुद्ध भी हो जाती है। यह घटना जो है भक्षकाणु क्रियाओं का जो है कोशिका कषण यानी कोशिका अशन भक्षक कोशिका क्रिया यानी फेमोसाइटोसिस कहलाती है। शाब्दिक रूप से अगर कोशिका जो है द्वार भक्षण या जो है सूक्ष्म जीवों का निगलना जाना जाता है तो नष्ट भी किया जाना अर्थात पचा भी लिया जाता है। तो 2 मुख्य प्रकार की कोशिकाओं द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें हम सूक्ष्म भक्षकाणु मैक्रोफाजिस मुख्य श्वेत रुधिर कोशिका और महाभक्षकाणु मेजोफाज युकृत प्लेह में कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है जो है भक्षकाणु कोशिकाओं के विषय में। अगर बात करें सूक्ष्म भक्षकाणु को, तो ऐसी श्वेत रक्त कोशिकाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पाली यानी लोब्स पाली केंद्रक होते हैं, ये आकार में छोटे और अल्प जीवित होती है। महाभक्षकाणु जो होती है कोशिकीय भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो आकार में बड़ी और दीर्घजीवी होती हैं, और ये लगभग सभी अंगों और उत्कों में पाई जाती है। लेकिन अगर विशेष रूप से ये फेफड़े और यकृत पहिए में पाई जाती है, तो ये फेफड़े और यकृत में जो है पाया जाना इसकी विशेष गुणों को दर्शाता है। अगर बात करते हैं भक्षकाणु कोशिकाओं के मुख्य गुण के बारे में, तो ये बाहरी आणविक एजेंट के संपर्क में आते ही जिनके संपर्क में आते हैं उन्हें तेजी से जो है निगल जाते हैं। निगलते गए पदार्थों के जो विखंडित करने के लिए इनमें पाचक एंजाइम भी होता है। ये सहज और उपसर्जित प्रतिरक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य भी करते हैं।
उसके पश्चात है पूरक कॉम्पोनेंट तंत्र। देखिए कॉम्पोनेंट जो है इसकी आखिरी है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल इम्यून सिस्टम के विषय में बात कर रहे हैं, जो कि हमारा जो है जन्मजात ही उत्पन्न होता है। तो कॉम्पोनेंट भी जो है उसी के एक उदाहरण है। कहते हैं पूरक तंत्र जो है प्रोटीन तथा समूह जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट नाम से भी जाना जाता है, दूसरी प्राकृतिक सहज प्रतिरक्षा प्रणाली है जो कि सूक्ष्म जीवों के जो है कोशिका श्वसन के बगैर को मार देती है। पूरक तंत्र का जो है अत्यंत जटिल तंत्र है जिसमें न्यूनतम 20 प्रोटीन होते हैं, यानी 20 प्रोटीन इसमें पाया जाता है। कुछ कंपोनेंट घटकों के जो है लिखने का तरीका यही है कि अंग्रेजी के अक्षर सी के बाद कोई एक अक्षर संख्या दी जाए। सबसे मूलभूत सर्वाधिक जो घटक है C3 है। कंपोनेंट घटक जो है अगर देखा जाए C36 की जो है भांति कार्य भी करती है। और ऑप्सांस एक प्रकार की जो है रोग प्रतिरोधक है जिसके विषाणुओं और जीवाणुओं के प्रतिजनन के संयोजन कर उनके भक्षक कोशिकाओं द्वारा निगले जाने की सहज बनाता है। ऐसे प्रतिबिंब सूक्ष्म जीवों की झिल्ली के जो है क्षेत्र में बनाकर भी उसकी सीधा विनाश किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। आप देखते हैं कि जो मानव द्वारा विकसित इम्यून सिस्टम कौन कौन से है, उसके विषय में क्या है हमारे लिए देखते हैं। The next is the most important acquired immunity. There is acquired immunity is artificial immunity. It is a immunity is a mediated of lymphocyte and characterized by antigen specific for memory. On the is acquired immunities is there may be a growth about it is individually in the too many way by the infection, so that is antibody are produced against the infected agent and by their delivered to the artificial immunizations, and this is a term to the activity of acquired immunity. And the by transfer for active immunize an individual through their blood, serum, component, etc. This is called to the passive acquired immunity. That is the most important. They have first here the active acquired immunity. The active acquired immunity due to the infection fall into two general categories. Some infections such as the diphtheria, whoopings, coughing, smallpox, and the mumps usually are introduced to the lifetime immunity is a pattern once recovered does not be get a disease is a sequentially. Another disease such as a common cold, influenza, bacillus dysentery, and the pneumococcus pneumonia confer immunity for the shorter period and sometimes only for a few weeks. The next here is a passive acquired immunity. There is the most important. It may be developed in the following way. The transfer of the antibody means IgG from to the mother into the fetus across the placenta. And the next is a breastfeed children also receive to the antibody from to mother as a milk. And poised human immunoglobulins is also used as a source of antibody in a number of cases including measles as an infection and infection of hepatitis. And the fourth is a human immunoglobulins is also give to the patient with the constitutional inability to be a make a antibody globulins. There is the most important here for the artificial antibody. यदि हम बात करें उपसर्जित प्रतिरक्षा तंत्र के विषय में तो हमें पता है कि यह प्रतिरक्षा लसिका कोशिकाओं के मध्यस्थता से होती है और इसकी विशेषता यह है कि प्रतिजनन के विशेषता जो एवं समरण शक्ति के विषय में ये हमें बताती है। किसी व्यक्ति में उपसर्जित प्रतिरक्षा मुख्यतः निम्न दो तरीकों से हो सकती है। एक तो होता है संक्रमण द्वारा, ताकि संक्रमण जो है कारक के विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाए, इसे सक्रिय उपसर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। एक जो है सक्रिय रूप से जो है प्रतिरक्षी व्यक्तियों के खून, सीरम्स, घटकों आदि के स्थानांतरण द्वारा इसे निष्क्रियता जो है उपसर्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है। पर जो उपसर्जित प्रतिरक्षा का मतलब दोस्तों यही होता है कि इंसान ने इसका स्वयं विकास किया है, क्योंकि हमने नेचुरल तो हमें पता ही है कि नेचर जो होता है जो जन्मजात हमें प्राप्त होती है, लेकिन ये जो होता है फ्यूचर में जो है हम इंजेक्शन के थ्रू हम अपने शरीर में जो है इसको विकास करने की कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पर आता है सक्रिय रूप से जो है उपसर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए क्या है ये, तो इसमें यही है कि संक्रमण द्वारा सक्रिय रूप से जो है प्राप्त प्रतिरक्षा दो सामान्य वर्गों में बांटा गया है। कहते हैं कुछ संक्रमण जैसे जो है डिप्थीरिया, कुक्कुर खांसी, चेचक, जो मूलन स्रोत या ग्लोसुलेसा यानी मप्पस आदि जो है सामान्यतः जीव भर की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात रोगी एक बार अगर ठीक हो जाए तो पश्चात पुण्य रोग से पीड़ित नहीं होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये
आर्टिफिशियल होती है और ये जो होता है एक बार कोई बीमारी हो जाए, जैसे कि आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स में भी कुछ इसी तरह को देखा गया है। अन्य रोग जैसे सर्दी, फ्लू, जीवाणु, पेचिश, अतिसार और निमोनिया अपेक्षित कम अवधि के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, कभी कभी केवल कुछ ही सप्ताह तक ये रहते हैं। उसके पश्चात अगर दूसरी बात देखा जाए तो दूसरी बात आती है निष्क्रिय रूप से जो है उपसर्जित प्रतिरक्षा, यानी इसमें देखा जाए तो प्रतिबिंब उदाहरण जो है आईजीजी का स्थानांतरण माँ से अपरा के द्वारा भ्रूण में होता है और माँ का दूध पीने वाले बच्चे माँ के दूध से एंटीबॉडी प्राप्त कर सकते हैं। एकत्र मानव इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो है मिला जुला कर भी उसको मामलों में एंटीबॉडी के सूत्र की भांति काम में जो है लाया जा सकता है, जैसे खासरा संक्रमण, विकृत शोध संक्रमण से, और मानव जो है इम्यूनोग्लोबिन्स के रोगियों को भी दिया जाता है जिनमें ग्लोबिन एंटीबॉडी निर्माण में जन्मजात अक्षमता होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। The next topic is active immunization is a vaccination. There is active immunization means vaccination. The people had observed to the past that individual was recovered from the content diseases are protected from the lifetime foreign occurrence, and there gives arise to the concept of immunizations. Edward Jenner introduced the vaccinations in the 1796 using to the cowpox to be a protest against the smallpox. There is the most important experiment for the Edward Jenner is the vaccinations. To object of vaccination introduced to the attitude of germs into body, their body is then to generate to the specific population of memory cell. These as memory cells can be rapidly increasing in the number on the renewed contact with the some antigen, and more antibody can be produced to provide to the protection against the infection. That is the most important. The next is the types of vaccines here. The three main types of vaccine are available for kill the organism is a vaccine. Example: typhoid, cholera, pertussis, buffalo cough, rabies, and poliomellitis. It means polio. And the liver altitude is a beacon organism and is a vaccine. Example: BCG, rubella, measles, and the polio. And annotations of means natural is the behavior of the organism without causing to a disease. There is an active multiply organism provide to steroid to antigen supply. And the third is a toxic vaccine. There is a toxic vaccine example of diphtheria and tetanus. Toxic is a chemically and physically modified toxic that is no longer harmful but is returned to the immunosensitives. And there is the important vaccines, the BCG, DPT, and the MMR. There is a BCG, the Bacillus calmette-guerin, is the calmette and guerin were to the scientists who is the contribute to the development of tuberculosis vaccines. There is called to the BCG. The DPT is a triple vaccine. Its antigen is a diphtheria, tetanus, toxoid, and there are pertussis and virulentia, virusi, and the whooping cough or organism. And MMR is their vaccine is attenuated is a strain of the measles, mumps, and the rubella. The another class of vaccine termed to the polysaccharide vaccine are available is a comprising to the vaccine for influenza and the meningitis or pneumonia. In this vaccine, there is a event immunizing protection of organism they are used, and the vaccines are further against the malaria, leprosis, anthrax and AIDS. तो हमारा यहाँ आता है सक्रिय प्रतिरक्षीकरण यानी टीकाकरण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब टीकाकरण के बारे में अगर हमने बात किया है तो सक्रिय प्रतिरक्षीकरण यानी टीकाकरण में क्या क्या आया है और क्या इसे जनमानस के लिए जो है हेल्प सिद्ध हुआ है, तो इसके विषय में हमने यहाँ बात करना है। कहते पुराने ज़माने में लोगों में देखा कि जो लोग एक बार किसी बीमारी के बाद स्वस्थ हो जाते थे उनमें उस विशेष रोग के उम्र भर पुनरावृत्ति नहीं होती थी। इसे हम प्रतिरक्षीकरण की संकल्पना को जन्म हुआ। एडवर्ड जेनर ने जो है गौ चेचक यानी काउ पॉक्स का प्रयोग करके 1796 में चेचक की प्रतिरक्षा का टीका प्रारंभ किया। तो ये काफ़ी जो है साइंस में एक चमत्कार के रूप में ही देखा गया। टीकाकरण का उद्देश्य जो है निष्क्रियकृत कीटाणुओं को शरीर में प्रविष्ट कराता है और जो है शरीर व समृद्धि कोशिकाओं को विशिष्ट जनसंख्या उत्पन्न भी करता है। यह समृद्धि कोशिका जनसंख्या में बड़ी तेजी से बढ़ती है और सामान्य प्रतिजनन और पुनर्विकृति संपर्क द्वारा जो है संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षण के लिए अधिक संख्या में एंटीबॉडी उत्पन्न किए जा सकने के लिए अग्रसर रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि टीकाकरण कितना इंपॉर्टेंट रखता है और इससे कई बीमारी जो है सक्रिय नहीं हो पाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर टीकाकरण के प्रकार के, तो आपको पता ही होगा कि
कहते हैं 3 प्रकार के टीका यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, मारे गए जीवों द्वारा टीका के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जो है टाइफाइड, हैजा, कुकुर खांसी, रेबीज और पोलियो, ये सारे जो होते हैं मारे गए जीवों द्वारा टीका का उत्पादन किया जाता है। एक होता है जीवित होता है तनुकृत यानी दुर्बलता जीवों द्वारा टीके के रूप में प्रयोग करना, जैसे BCG हो गया, रूबीला हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, तो ये जीवित तकनीकी द्वारा बनाया गया होता है। तनुकृत जीवाणु बिना रोग पैदा किए हुए ही अपना जो है प्राकृतिक व्यवहार प्रकट करते हैं और सक्रिय रूप से वृद्धि करने वाले जो है जीवाणु सतत रूप से जो है प्रतिजनन जो है आपूर्ति करते रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। तीसरी बात जो यहाँ पर आती है वो आता है जो है टक्साई टीके, यानी टक्साई टीके भी इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ रखता है। देखिए इसमें यही बात बताया गया है कि ये जो उदाहरण के लिए जो है डिप्थीरिया एवं टेटनस आती है, कहते हैं टक्साइड यानी अभिभाव एक रासायनिक या भौतिक रूप से परिवर्तित अविष यानी जीव विष होती है। ये जो हानिकारक नहीं रह गया है लेकिन इसका जो है प्रतिघनत्व यानी इम्यूनोजेनिसिटी बना रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। यदि हम बात करें महत्वपूर्ण टीके की, तो आपको पता है कि BCG, DPT और MMR जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टीकाकरण का नाम आपके समक्ष है। अगर देखा जाए पहले BCG के बारे में, तो BCG जो है आपको बैसिलो कैलमेंट ग्यूरियंस भी कहते हैं, इसको शॉर्ट जो है फुल फॉर्म है इसका बैसिलो कैलमेंट ग्यूरियंस, यानी जो है कैलमेंट और ग्यूरियंस 2 वैज्ञानिक ने इन्हें HRTV के टीके के विकास में योगदान दिया, जिन्हें नाम से ये रखा गया, यानी BCG इसका नाम रखा गया। तो ये जो साइंटिस्ट ने खोज किया उन्हीं के नाम से रखा गया और टीवी के इलाज में ये जो था एक रामबाण की तरह कार्य किया। अगर DPT की बात करें तो ये है तरज टीका, यानी प्रतिरक्षण डिप्थीरिया, टेटनस, टक्साइड और पेट्रोसिस, कुकर खांसी यानी ब्रोडेला पेट्रोसिस के रूप में कार्य किया और 3 नामक रोगों के जीवाणुओं के लिए एक ही टीका बनाया गया। अगर MMR की बात करें तो ये टीका खसरा, ग्लूसरोस और रूबेला का है एक अन्य प्रकार के तंत्रित टीके हैं, जिन्हें हम पॉलीसेकेराइड टीके भी कहते हैं, जो उपलब्ध होता है, जैसे फ्लूड, मेनिंजाइटिस व जो है निमोनिया। इस टीकों में जीवों के उपयुक्त जो है प्रतिरक्षा जनित भाग प्रयोग किए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। अगर भविष्य के देखें टीके के, तो मलेरिया जो है, कुष्ठ रोग और एंथ्रेक्स, एड्स जैसी बीमारियों के लिए भी टीका जो है खोजी जा रही है और हो सकता है कि भविष्य में इस पे भी विजय पा लिया जाए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों से जितना हो सके शेयर करना है। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जाना है YouTube पे और लिंक को कॉपी करना है और WhatsApp स्टेटस पे लगा देना है।